Assalamu alaikum, this is Sir Mujib. We are in the first session of the chemistry, class 9th. So today we study about the chemistry. So let's talk about it. The first thing which we have to study is about the science. You know that science has many branches, but it's not true. Science has majorly the two branches. Let's consider the one which is named as the social sciences, and the second one which is named as the physical sciences. So the social sciences are those sciences which are apart from the practical configuration and the practical dealing of the procedures or in anything. And the physical sciences are those sciences which are would deal with the practical explanations and the major many more things. The physical sciences has a very common branch, a very helpful branch which we have to study is named as the chemistry. Let's consider about the chemistry. What is chemistry? Chemistry is a branch of science that deals with the composition, properties, structure and changes which occur in matter. So the chemistry is based on the four different words. I must say chemistry based on the four different words which are the composition, which are the properties, which are the structure, and which are the changes in matter. So before considering the chemistry and its four words, composition, properties and structure and changes, we first know about the matter, that what is matter. So we know about the matter in our very primary classes that matter is anything which occupies a space and has some weight. Let's consider an example that this duster in my hand, is it a matter or not? So I know that you all have an answer which is that this duster is a matter because it occupies some space and it has some weight. Anything which occupies some space and has some weight is known as matter. कोई भी शय दुनिया जहान की पूरी कायनात के अंदर मौजूद हो, अगर वो जगह घेरे या उसमें वो जगह घेरने के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ वजन हो तो वो मैटर कहलाती है. लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स. आपके हाथ में रजिस्टर है, क्या वो रजिस्टर मैटर है? यस, इट इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम वेट. आपके हाथ में पेन है, इज इट अ मैटर? Yes, it is a matter. It occupies some space and has some weight. उस पेन की या उस पेंसिल की निब है. Is that nib a matter? Yes, it is a matter because it occupies some space and has some very negligible but a amount of weight. और इसको स्मॉल स्केल पर लेके चलते हैं. आपके घर में उड़ने वाली वो होमी फ्लाई, मक्खी, उसका पर टूट कर गिर जाता है, उसका एक पर टूटकर जमीन पर गिर जाता है, तो क्या वो पर मैटर है या नहीं? हमारे हिसाब से तो वो इंतहाई नेग्लिजिबल अमाउंट है, हमें दिख नहीं रहा, तो क्या वो मैटर हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट अ मैटर. बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ मैटर. दैट पर्टिकुलर थिंग, वो एक बहुत छोटी सी चीज जो हमें जमीन पर नजर भी नहीं आ रही, विद आवर नेकेड आई को हमें इजीली नजर नहीं आ रही, लेकिन वो मैटर है. क्यों? क्योंकि वो जगह घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ वजन है. और उसको स्मॉल स्केल पे लेके चलते हैं. हमारे घर में दीवार पर रेंगने वाली वो चींटी एंट, क्या वो मैटर है? तो वो भी मैटर है क्योंकि वो भी जगह घेरती है एंड इट हैज सम वेट, उसका कुछ वजन भी है. तो ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स, मैं बात इस वक्त सिर्फ कराची, पाकिस्तान, अर्थ या हमारे सिर्फ इस सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऑल ओवर द यूनिवर्स, अल्लाह ताला की बनाई गई कुल कायनात की. दुनिया में, पूरी कायनात में हर चीज मैटर है. यू नो दैट मैटर इट इज. व्हाट मैटर इट इज, हम जानते हैं मैटर क्या है, तो अब हमें समझ में आ गई. इसी मैटर के बारे में, इसी मैटर की कंपोजिशन यानी के बनावट, कंपोजिशन यानी के
बनावट। ये किस चीज से बना हुआ? प्रॉपर्टीज, या आसान अल्फाज में इसको मैं कह लूं कि ये खुसूसियात हैं, क्वालिटीज जो है उसकी, प्रॉपर्टीज जो उसके साथ हालतें होंगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो इन इजिएस्ट वर्ड स्ट्रक्चर मींस उसका शेप कह लेते हैं, चेंजेस यानी कि तब्दीलियां। बात समझ में आ गई? इन तमाम चीजों को हमें डील करना है तो हम पहुंचेंगे केमिस्ट्री में। किसी भी मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और चेंजेस के बारे में अगर हम डील करते हैं तो दैट थिंग विल बी नेम्ड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज नोन एज द केमिस्ट्री। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। आपके सामने एक रजिस्टर रखा हुआ है। इस रजिस्टर को क्या पहले कंसीडर करते हैं दैट इज दैट थिंग अ मैटर और नॉट? तो आप सबका जवाब होगा यस इट इज अ मैटर। अच्छा, अब बात करते हैं उसकी कंपोजिशन पे। ये रजिस्टर किस चीज से बना हुआ, उसकी बनावट क्या है, किस चीज से बना हुआ है? तो आप फौरन बताएंगे सर ये पेपर से बना हुआ है, इसमें कार्ड है, इंक का इस्तेमाल किया गया है, तो ये उसकी कंपोजिशन होगी। शेप को कह रहे होते हैं। तो भैया ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर यानी कि उस रजिस्टर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है? आपने फौरन जवाब दिया सर ये तो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये हो गया उस चीज का स्ट्रक्चर। आते हैं प्रॉपर्टीज की जानिब। प्रॉपर्टीज में क्या है? प्रॉपर्टीज में आपने मुझे बताया, किसी शख्स ने कहा कि सर मैंने इस रजिस्टर को जला दिया, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जल गया। सर मैंने इस रजिस्टर को जो है वो ठंडा कर दिया, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया तो ये जम गया। सर मैंने इस रजिस्टर को जो है वो टेस्ट करके देखा दैट इट इज न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक। तो ये सारी चीजें क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज है। चेंजेस क्या है? आप उस रजिस्टर में तब्दीलियां ला रहे हैं। आपने उसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो वो तब्दील हो गया, किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया तो वो तब्दील हो गया। तो ये दीगर चीजें हैं जिनमें चेंजेस आते हैं। तो इन तमाम बातों को हम डील करते हैं इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, केमिकल बेस्ड एग्जाम्पल जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेबल है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप तमाम लोग जानते हैं, मैं उसका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, उसका नाम है वाटर। एक केमिकल सब्सटेंस है वाटर। अब वाटर के बारे में जो बात कही जा रही है, भाई वाटर को हम जज करते हैं क्या वाटर मैटर है या नहीं। सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये आता है दैट वाटर मैटर है या नहीं है। तो वाटर मैटर होता है, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक 19 लीटर्स का गैलन था, सही है, उस गैलन को आपने उठाया, एम्प्टी गैलन था, आपने उठाया, बहुत ही इजीली कैरिएबल था, आपने बहुत आसानी से उठा लिया उसे। लेकिन अब क्या हुआ? अब आपने इस 19 लीटर्स का जो गैलन था उसे लेकर गए शॉप पर, उससे फिल करा लिया, वाटर फिलिंग हो गई कंप्लीटली। अब जो उठा रहे हैं तो थोड़ी सी जान लगानी पड़ी, थोड़ी क्या कदर ज्यादा जान लगानी पड़ रही है। क्या वजह है? इसमें क्या चेंज आया? इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड हो गया। वो सब्सटेंस क्या है? वो है वाटर। तो वाटर की वजह से उसका वेट, उसका जो मास था वो बढ़ गया बेसिकली। तो मैटर जो है, मैटर है वाटर, क्योंकि उसने जगह घेरी, गैलन के अंदर की जगह घेर ली और उसका वजन बढ़ा दिया, तो ये कहलाया मैटर। वाटर क्या कहलाया? मैटर। तो अगर ये मैटर है तो इसको इन चारों चीजों के ऊपर रखकर जरा जज कर लेते हैं कि क्या हासिल वसूल होता है हमारे पास। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो पानी किस चीज से बना है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि पानी बना किससे है? तो आप मुझे फौरन किसी ने बताया कि सर पानी बना है, वाटर का फॉर्मूला क्या है भाई? वाटर का फॉर्मूला लिख लिया H2O। सर पानी बना है 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से। ऐसी कंपोजिशन, बनावट किस चीज से मिलाकर बनाया आपने? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर, सर पानी के क्या शेप की बात की जा रही है? वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बिकॉज देयर क्रिस्टल लैटिस, उनकी जो आपस में बॉन्डिंग होती है, उनके अंदर जो एक बहुत हुजूम होता है मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। इसकी वजह से शेप यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं। मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दी थी रजिस्टर की, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए थी कि आपको बात समझ में आए कि शेप क्या होगा। केमिस्ट्री के अंदर शेप उस सब्सटेंस का ओवरऑल शेप नहीं होता जो हमें नजर आ रहा है। केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका इनसाइड स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा था कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो एटम्स है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ मॉलिक्यूल, टू मेक अ कंपाउंड, ये अलग अलग एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस
तर्ज में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, किस एंगल में जुड़े हुए हैं, इट विल डिफाइन द स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि एक हाइड्रोजन, फिर ये मिला दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और फिर यहीं पर एक और हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बात आप मेरी यहां तक समझ गए। आगे चलते हैं जरा प्रॉपर्टीज की जानिब पर। अब प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई वाटर की जरा प्रॉपर्टीज बताना शुरू करो। किसी ने मुझे बताया कि सर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है सर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खासियत है, इसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। सर अगर वाटर को हम जमाना चाहे, पानी को अगर हम फ्रीज करना चाहे, वी वांट टू फ्रीज द वाटर, सो वी हैव टू मेक द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बात समझ रहे हैं आप? सर वाटर एसिड है क्या, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है? तो वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो ये सब क्या हो गई, ये सब हो गई बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। अब बात कर लेते हैं जरा चेंजेस की। मिसाल के तौर पर अगर वाटर को मैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता हूं, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूं, तो उसमें क्या चेंज आएगा? वाटर इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड था, अब वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर्स आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर को किसी मेटल के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, चेंजेस आ रहे हैं, रस्टिंग, जंग लगना शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी वाटर को मिसाल के तौर पे किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या होगा? अगर मैं वाटर को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या होगा? बेसिकली एसिड के रिएक्शन में उसकी एसिडिटी जो है, एसिड की जो कुव्वत है, जो एसिड की तेजाबियत है, जो एसिड के अंदर ताकत है, जो पावर है उसकी, जो उसको हार्म करने की, दूसरी चीजों के साथ रिएक्शन करने की जो उसकी स्ट्रेंथ है, आहिस्ता आहिस्ता वाटर के एडिशन से उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वो डाइल्यूट होता जाएगा। यही सिनेरियो बेस के साथ होगा कि अगर मैं किसी बेस के अंदर वाटर को ऐड कराता हूं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुव्वत, उसकी पावर, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो बेसिस उसके अंदर जो एक कुव्वत है किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और फिर बेस जो है वो आपका डाइल्यूट होता जाएगा। तो ये तमाम चेंजेस आ रहे हैं। हमने बात की इस वक्त अपने पास कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, हमने बात की इस वक्त अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, हमने इस वक्त बात की अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, हमने इस वक्त बात की अपने पास चेंजेस ऑफ अ सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज मेजरली कॉल्ड एज अ मैटर, एंड दिस पर्टिकुलर मैटर इज now we considered as water. So these all things which we consider, which we developed in our mind, which we consider that the boiling point of water, which we consider that freezing point of water, that water is neutral, the composition of water, the structure of water, these all things will be considered in the term of chemistry. बात यहां तक मेरे ख्याल में आपको सबको क्लियर हो गई होगी। तो जरा केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। एक लम्हे के लिए वीडियो को रोककर इन सारी चीजों को अपने पास कॉपी डाउन कीजिएगा, फिर हम जरा केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एक प्रॉपरली अंदाज के अंदर लिख लेते हैं। यही 4 लफ्ज हैं बेसिकली जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन का एक अहम किरदार अदा करते हैं और केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनते हैं। सो द डेफिनेशन इज chemistry is a branch of science that deals with the, कौन से 4 लफ्ज थे? That deals with the composition, और क्या था? Properties. What's the next? Structure and changes of किस में आ रहे थे? किसकी कंपोजिशन, किसकी प्रॉपर्टीज, किसका स्ट्रक्चर, किसमें होने वाले चेंजेस, द चेंजेस ऑफ मैटर।
So this is the complete definition for the chemistry. Chemistry is a branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter. Chemistry science की एक branch है जिसके अंदर हम बात करेंगे कंपोजिशन की, प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर की और चेंजेस की, यानी कि मैटर में होने वाले चेंजेस की बात करते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन फॉर द केमिस्ट्री. अच्छा, केमिस्ट्री के हमारे पास कुछ ब्रांचेस है. वी हैव सम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो उनके जरा नाम लिख लेते हैं. There are many branches of chemistry, but in our course, हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से there are the 9 branches of chemistry. उनका नाम स्टार्ट करते हैं, लिखते जाते हैं. सबसे पहले मैं स्टार्टअप कर लूं, मैं नाम नहीं लिख रहा सारे, मैं आपको 1 by 1 समझाता ही जा रहा हूं. सबसे पहले आपके पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री लफ्जों से समझ में आ रही है बात. फिजिकल लफ्ज, फिजिकल यानी कि थोड़ा सा ऊपरी माहौल में बात की जाएगी. हमने अभी देखा था साइंस की 2 ब्रांचेस के अंदर हमारे पास एक फिजिकल और सोशल थी. फिजिकल के अंदर हमने देखा केमिस्ट्री थी, और केमिस्ट्री की अपनी ब्रांचेस में से एक ब्रांच आ गई फिजिकल केमिस्ट्री. व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. मैं आपको सिर्फ इसके जो अहम बात है इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं वो लिख कर दिखाऊं. दैट फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज, दैट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द, हम बात कर लेते हैं, दैट डील्स विद द लॉज व्हिच आर गवर्निंग द chemical combinations. The physical chemistry is a branch of chemistry that deals with the laws which are governing the chemical combinations. ऐसे तमाम कानून, देखो कानून के बगैर हमारी दुनिया बेकार है. मिसाल के तौर पे that if you are riding a bike, it's must for you that you have to wear a helmet. If you are driving a car, that it's a must condition for you that you have to pass a seat belt on yourself. These are the rules, these are the laws, these are the principles. Who made these principles? The government, which are on us. हमें चला रहे हैं, हमारे ऊपर हैं, हम उनके तहत काम करें. And if you don't obey, so what do you think? Did your work goes to the right pathway? No, it's not possible. अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी सही नहीं जा सकते, आपका काम हमेशा गलत होगा. So let's consider an example. आपकी वालदा घर में खाना बनाती हैं और कोई भी फॉर एग्जाम्पल बिरयानी बनाती हैं, तो बिरयानी बनाने के लिए उन्हें किसी ना किसी रेसिपी को फॉलो करना पड़ता है. ऐसी होता है. फॉर एग्जाम्पल 2 लोग बिरयानी बनाते हैं, एक शख्स जो है वो अपने पास उसे अच्छे तरीके से बनानी आती है और मुझे बनानी नहीं आती, बट वी हैव द सेम इंग्रेडिएंट्स. He knows the recipe, he knows the pathway, he knows the rules and regulations that how to prepare that particular product, and I don't know anything. मुझे कुछ नहीं पता. वो सारे काम पैटर्न से करते जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता. मुझे पता है चिकन, चावल, मसाले सब चीजें चाहिए, मैंने एक ही जगह डाली, पतीला बंद करके रख दिया, दैट्स ऑल. 3 घंटे बाद खोल रहा हूं. व्हाट डू यू थिंक? क्या बिरयानी होगी उसमें? नहीं. क्यों नहीं होगी उसमें? मैंने फॉलो नहीं करे रूल्स, मैंने चीजों को फॉलो नहीं करा, सही पाथवे पर नहीं चला. दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ. तो केमिकल रिएक्शंस में भी यही होता है. केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं के तहत काम होता है, उससे हटकर कुछ नहीं हो सकता. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ लॉ. चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक फर्स्ट लॉ है which is named as the law of conservation of mass. The statement of that law is mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. वजन, मास की बात करूं मैं, अब जरा उर्दू में तर्जुमे के साथ लेके चलूं आपको. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, वजन कभी नहीं बनाया जा सकता. मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, वजन कभी घटाया नहीं जा सकता. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान. लॉ है, मानना पड़ेगा, यही होता है, ऐसा ही होता है, इससे हटके नहीं हो सकता. चलो आज इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं. इज इट पॉसिबल और नॉट? लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. आप अपने स्कूल से बहुत थके हारे घर पहुंचते हैं,
आपकी वालदा खाना बना रही है, बड़े जोरों शोर के साथ उस दिन जो है वो किचन में काम चल रहा है। आप अपनी वालदा से पूछते हैं अम्मी क्या बना रही हैं, अम्मी कहती हैं रात में दावत है, देयर आर सम गेस्ट्स व्हिच विल कम इंशाल्लाह इन इवनिंग, तो उनके लिए खाना बन रहा है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपकी वालदा, आपने पूछा क्या बना रही है, अम्मी ने कहा 8 किलो बिरयानी। ह्यूज अमाउंट है, अच्छी खासी तादाद में बिरयानी बन रही। सही, आप घर में सो गए, उठ गए, रात को खाने का वक्त आ गया, मेहमान आ गए घर पे। अब जैसे ही 8 किलो बिरयानी बनाने रखी है अम्मी ने, 8 किलो बिरयानी बनाने रखी है, जैसे ही उस बिरयानी के जो पतीला था, जो उसका बॉक्स था जिसके अंदर उसे रखा गया था, उसको जैसे ही खोला गया, उसके अंदर 8 किलो नहीं है, उसमें 2 किलो बिरयानी निकलती। इज इट पॉसिबल कि उसमें 2 किलो निकलेगी? तो मेरे ख्याल में आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसमें 8 किलो बनाने रखी थी। चलो कंसिडर करते हैं, ये एग्जांपल यही पॉज करी, दूसरी एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ 8 से 2 किलो हो गई तो हमारा मामला तो बने नहीं, मेहमानों का तो काम चला नहीं। आगे देखते हैं अब कहानी में दूसरी तरफ क्या है। आप फिर स्कूल से घर आते हैं, आपकी वालदा काम करें, आपने पूछा अम्मी क्या बना रही है, अम्मी ने कहा बेटा बिरयानी बना रही हूँ। अब आज कितनी बना रही है, आज 2 किलो बना रही हूँ। अच्छा, रात का वक्त आ गया, वालिद साहब बैठे हैं, आप घर में खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। जैसी उस पतीले को खोला जाता है जिसमें बिरयानी है, कितनी थी, 2 किलो बनाई है अम्मी ने, जैसी खोला 8 किलो हो गई। क्या ये पॉसिबल है कि 8 किलो हो जाए? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, 2 किलो से 8 किलो नहीं हो सकता, कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, 8 किलो से 2 किलो नहीं हो सकता। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आप रिएक्टेंट प्रोवाइड करते हैं उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलता है। केमिस्ट्री के अंदर जितने रूल्स लॉज हैं उन तमाम के बारे में हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स व्हिच आर गवर्निंग द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक या दो से ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, कुछ नई चीज बना रहे हैं, यानी कि जो मिल रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो बनेगा वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट, अगर मैं आपको इस तरह से समझा सकूं कि आपने जितना रिएक्टेंट प्रोवाइड किया है उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही तो कानून है और ये ट्रुथ है, यही सही है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं निकलती। तो यही तमाम रूल्स और लॉज आपको पढ़ाए जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री थी जिसके बारे में हमने आज बात की है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thanks for today's lecture. Jazakallah. Assalamu alaikum.